guys, this video is based on the academic map related to task 1 of the IELTS. So hopefully this video is so beneficial for you, because I also use same kind of a rule and regulation, and I also get a 7 band in my IELTS writing. So let's get start this video without wasting any time. So firstly, I want to recommend to you for the each and every student, if you are beginner, obviously this is the so important video for you. And if you are the already do IELTS, that time you can also compare your task and my task, how I can use the different structures and all that. So this video is so beneficial for every and each student. So let's get start this video. The first of all, in case of a map, there is some basic rule and regulation. The very simple, that is the our direction. Direction is a must to remember: north, south, west and east. Okay, and even you also know about these kind of these sub direction: north, west, northeast, southeast and southwest. Okay, so firstly you remember all kind of these direction, 4 direction along with its sub direction. So let's get start this video that is based on highly useful vocab words, highly useful structure. So let's get start. I have an example for each and every student. So here it is. Okay, so I have one example of a village. There is a simple village, and inside the village there is a one school, and outside the village there is a one hospital. So how we can write about this? So I have also example. School is located in the north of village. If you can see, if you analyze only village, so where is the north direction? Here it is. So north of the village there is a one school. You can also use that sentences here. Okay, and hospital just in front of the, sorry, here it is, school. Okay, and hospital just in front of the school outside from the village. जो हमारा हॉस्पिटल है that is the in front of, सामने है वो किसके, स्कूल के सामने, but जो हॉस्पिटल है that lie in the outside from the village. Okay, you can also use this sentence, and after that the hospital is located to the north of village. If you use this structure to the, that's mean this is the main reason is that when something outside from someone, जब वो कहीं बाहर होता है, राइट, तो आप to the यूज कर सकते हो. द हॉस्पिटल इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ विलेज. नॉर्थ के बाहर, विलेज के बाहर मीन्स नॉर्थ साइड केवल वहाँ पे एक चीज़ है, वो है हॉस्पिटल. ओके, द थर्ड वन, द स्कूल इज सिचुएटेड इनसाइड द नॉर्थ ऑफ विलेज. जो स्कूल है वो इनसाइड द विलेज मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन पर सिचुएटेड है. And outside the hometown, village, we can also use the another vocabulary word. Outside the hometown, towards the top of the direction, there is a hospital. Towards top of the direction, टॉप ऑफ द डायरेक्शन जो नॉर्थ की बात कर रहे हैं उसके ऊपर और क्या है, एक हॉस्पिटल है. ओके, इनसाइड यूज़ किया जाता है इनके लिए. आउटसाइड के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो, ऑफ भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे हमने टू द यूज़ किया है, टू द नॉर्थ ऑफ विलेज. यू कैन ऑल्सो यूज़ हियर इट इज़ ऑफ द नॉर्थ ऑफ द विलेज. यू कैन ऑल्सो यूज़ सेम वर्ड in the to the north of a village. Okay, so let's move on the adjoining, co-joining, in front of, opposite of and across from. Okay, so this is also beneficial for you. If you see school and office, here school and office, these are situated together, इकट्ठे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, राइट. सो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो? एडजॉइनिंग, को ज्वाइनिंग. ओके, these फर्स्ट टू,
दीज आर हेल्पफुल फॉर द एडजॉइनिंग, मीन्स अगर वो इकट्ठे हैं, राइट। इन फ्रंट ऑफ, लाइक स्कूल के सामने क्या है, हॉस्पिटल है। स्कूल के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट मीन्स नॉर्थ के साउथ डायरेक्शन में क्या है, एक हॉस्पिटल है। अक्रॉस फ्रॉम, स्कूल को पास करके क्या आ जाता है, ऑफिस आ जाता है। इसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। यार आई हैव ऑल्सो वन एग्जाम्पल फॉर यू। देयर इज़ अ स्कूल, द स्कूल इज़ लोकेटेड, स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सामने सिचुएटेड है क्या, स्कूल। स्कूल इज लोकेटेड ऑपोजिट ऑफ द हॉस्पिटल, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात की हुई है। द स्कूल इज लोकेटेड अक्रॉस फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को अगर पास करेंगे, रोड को पास करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एक स्कूल। ओके, इन केस ऑफ दीज टू, एडजॉइनिंग एंड को ज्वाइनिंग, सो देर इज अ ऑफिस, एक ऑफिस है, एडजॉइनिंग साथ, किसके साथ, द स्कूल, स्कूल के साथ। रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड, कभी भी एडजॉइनिंग के साथ आप विद नहीं यूज करोगे। ओके, देयर इज अ ऑफिस को ज्वाइनिंग द स्कूल, सेम जहाँ पे आपने एडजॉइनिंग यूज़ किया है वहाँ पे मैंने को ज्वाइनिंग यूज़ कर लिया है। देयर इज ऑफिस राइट नेक्स्ट ऑफ द स्कूल, अगर हम स्कूल के राइट हैंड साइड पे देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, एक ऑफिस दिखाई देगा। ठीक है, ओके। इन द सेंटर ऑफ द गिवन मैप देयर इज अ हॉस्पिटल, अगर सेंटर की बात की जाए तो एक वहाँ पे हॉस्पिटल है। वाइल अक्रॉस द रोड, रोड को पास करने के बाद देयर इज अ स्कूल, वहाँ पे एक स्कूल है जो किसके साथ है, ऑफिस के साथ है, एडजॉइनिंग द ऑफिस। So this is the related to our adjoining, across, in front, opposite. So in that way you can also use these kind of a word and must use this one. Okay, these are so important things. Okay, adjoining and co-joining. Okay, when we compare a past present, it not depends on the present and past, but it especially it compare when something remove, that time which kind of vocab we can use. So firstly we understand about the map, school as well as the hospital. In the 1990 there was a school and hospital, even office as well, but in the present time there is only a one office, means school and hospitals are completely removed, right? So how we can use the different other things, this is the basic information for the beginners. If you use it like in the past, you can also use was, were, had. प्रेजेंट के लिए आप क्या यूज़ करोगे, इज, आर, हैज़, हैव, एंड फ्यूचर के लिए वुड एंड विल भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। when something is completely removed, that time you can also use demolish, dismantle, knock down and tear down. Okay, so keep this image in your mind, okay, because I just want to move again. Okay, look at school and hospitals that are completely removed in the present time. Okay, so here I have an example to you. For example, school and hospital was completely demolished. यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये पास्ट में थे और अब ये नहीं रहे। ठीक है, अब क्या है, वो रिमूव हो चुके हैं, वहाँ से हट गए हैं, लाइक अब तो नहीं है ना, मीन्स पास्ट में थे और पास्ट में ही वो क्या हो गए, रिमूव हो गए, कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई आई यूज्ड here third form, completely demolished, and now there is only a office towards the northeast direction, and now there is a one office towards the, ये डायरेक्शन कहाँ को मूव करती है, here it is, look on the cursor. ओके, सो ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट को मिलके यहाँ पे क्या डायरेक्शन बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की साइड पे ये लाई करती है। ओके, स्कूल दैट वॉज एडजॉइंड द ऑफिस, जो स्कूल है, जो स्कूल था, हैड, स्कूल हैड एडजॉइनिंग द ऑफिस, जो स्कूल के ऑफिस के साथ एक क्या था, स्कूल था, हियर इट इज, हैड नॉक्ड डाउन, हैड नॉक्ड डाउन, द ऑफिस, जो स्कूल के ऑफिस के साथ एक क्या था, स्कूल था, हियर इट इज, हैड नॉक्ड डाउन द ऑफिस, जो स्कूल के ऑफिस के साथ एक क्या था, स्कूल था, हियर इट इज, हैड नॉक्ड डाउन
नॉक डाउन का मतलब होता है डिमोलिश्ड हो गया वो, एंड ओनली ऑफिस हैज़ सेम डायरेक्शन इन दीज डेज। जो ऑफिस है वो आज के दिन वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वो सेम डायरेक्शन पे है। अगर आप डायरेक्शन की बात करें यहाँ पे तो डायरेक्शन सेम है, बट जो स्कूल एंड हॉस्पिटल है दैट वाज कम्प्लीटली रिमूव्ड, दैट वाज अ कम्प्लीटली demolished, dismantled, tear down. Okay, so in that way you can also use different vocabulary words for when something removed from one place to another one. Okay, so our next one is the compare of the, especially when something is built. This one is especially for that thing when something like any building is completely built. Okay, so यहाँ पे कोई चीज बन जाती है तो that time which kind of words we can use. Okay, so let's get start again. So first of all, we understand this kind of the map. In 1990, there was only a one office, but in the present time there is a school, hospital, and office. Means two kind of a buildings. One is a school and second one is a hospital. These are built. मीन्स ये बनी हुई है बिल्डिंग आज प्रेजेंट के टाइम, राइट, बन चुकी हैं. हैज़ भी यूज़ कर सकते हो आप. ओके, इज़ आर भी यूज़ कर सकते हो, बट बन चुकी है उसके लिए हम एस्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट, build, emerge, and appear. These words are so helpful for you. Okay, and try to use these words as compared to this one. build की जगह पे आप कोशिश कीजिए कि आप अदर वर्ड्स का यूज करें. ओके, लाइक established, constructed, emerged, and appeared. ओके, स्कूल इज कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि क्यों लगेगी, बिकॉज वो बन चुका है, राइट. स्कूल इज कंस्ट्रक्टेड एट ज्वाइनिंग द ऑफिस. जो स्कूल है वो बन चुका है किसके साथ, ऑफिस के साथ. ओके, इन दैट वे यू कैन यूज. अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल. पहले हमने स्कूल की बात की, ओके, कि वो बन चुका है. अब अक्रॉस द रोड मीन्स रोड को पार करने के बाद, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बिल्कुल सामने, हॉस्पिटल इज एस्टैब्लिश्ड. वहाँ पे क्या बन चुका है, एक हॉस्पिटल बन चुका है, राइट. ओके, आप ऐसे भी यूज कर सकते थे और डिफरेंट काइंड ऑफ वे वी कैन हैव टू यूज डिफरेंट थिंग्स लाइक ऑपोजिट द स्कूल, ऑपोजिट दी स्कूल हॉस्पिटल हैज़ कंस्ट्रक्टेड. वहाँ पे क्या बन चुका है, एक हॉस्पिटल है जो बन चुका है. इन द ईयर 1990, अगर बात करें 1990 की, ओके, there was merely, you can use any word here but use one only. Okay, there was merely a office. वहाँ पे क्या था, जस्ट ऑफिस था एक 1990 में. बट इन द प्रेजेंट टाइम देयर इज़ अ स्कूल. बट अब जो प्रेजेंट टाइम है वहाँ पे एक स्कूल है, ठीक है, एडजॉइनिंग द ऑफिस, ऑफिस के साथ. एंड हॉस्पिटल इज़ फुली अपीयर्ड. वहाँ पे एक हॉस्पिटल बन चुका है, ठीक है. अगर आप उसकी डायरेक्शन बताना चाहते हो तो आप इवन यू कैन ऑल्सो यूज हियर इट इज़ ब्रैकेट. ओके, अक्रॉस द रोड, रोड को पार करने के बाद, एंड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, रोड को पार करने के बाद और इन फ्रंट ऑफ द स्कूल देयर इज अ वन हॉस्पिटल दैट इज फुली इमर्स्ड. ओके, you can also use it. So for example here there is some other words like when the area is fully expand, like you can also see it very carefully. In the present time there is a one school, office, hospital, but there is some anticipation. कुछ assumption की गई है कि स्कूल और ऑफिस एंड हॉस्पिटल का जो एरिया है वो completely enlarge, but you can also use the different things like enlarge, extended, and expand. These kind of words are so helpful for you if you use the different things for the expansion of the area. So how we can use it?
I have also example for you. So let's get start. In the present time, school and office are adjoining. अगर आप देखो स्कूल एंड जो ऑफिस है वो एक दूसरे के साथ हैं, राइट. एडजॉइनिंग द ऑफिस एंड स्कूल, ये एक दूसरे के साथ हैं. बट वेयर एज मीन्स इसका मतलब होता है जद के, और आप यूज़ कर सकते हो लाइक फॉर यूजिंग समथिंग डिफरेंट. ओके, इन केस ऑफ द ऑपोजिट, और आप यूज़ कर सकते हो इसको हाउएवर भी यूज़ कर सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में तो जो स्कूल एंड ऑफिस हैं वो तो एक दूसरे के साथ हैं, राइट. वेयर एज जब के, ठीक है. हॉस्पिटल इज ऑपोजिट द स्कूल. जो हॉस्पिटल है दैट इज द टोटली ऑपोजिट है किसके, स्कूल के. ओके, मोर ओवर आगे एक्सप्लेन करते हुए, इट इज एंटिसिपेटेड, इट इज अज्यूम्ड, इट इज प्रोडिक्टेड दैट, कोई चीज का अनुमान लगाया गया है कि द एरिया ऑफ दीज प्लेसेस, जो एरिया है इन तीनों प्लेसेस का, दीज प्लेसेस मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट थिंग्स यूज किए रजे, आप देख सकते हो. आई डोंट वांट लाइक दिस वन. Select me okay, then I have also used some hyphen here, but try to use this for the limited information, and also use like the area of these places will be. Here I use any verb. If you use these kind of a limited information like hyphen, that time after using any noun like these place, okay, after finishing the hyphen there is a one kind of a helping verb or any verb. Okay, so these kind of a thing everyone should keep in your mind. these places means जो हमने तीन मेंशन किए हैं, स्कूल, ऑफिस एंड हॉस्पिटल. ये जो एरिया है इन these places का will be और would be enlarged, expanded और extended. मीन्स जो एरिया है वो प्रोडिक्ट किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि वो आगे फ्यूचर में जाके वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा. ओके, सो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो यूज दिस थिंग and try to keep in your mind because it's so helpful for each and every student, especially this one. Okay, and try to use this in your map also, and also use in your task 1, task 2. You can easily use it, so try to use it. Okay, let's move. Hopefully you understand it. Let's move the next one. Okay, hopefully you understand this map. Okay, पास्ट में जो हमारा स्कूल, ऑफिस और हॉस्पिटल का एरिया है वो इनलार्ज था, बट प्रेजेंट टाइम में वो क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है. मीन्स उसका साइज है वो कम हो गया है, राइट. सो you can also use the different word here. Don't try to use any small. Okay, shrink, made smaller and smaller. Okay, there is a shrink word as well as a made smaller. These are two words which are highly effective for you, okay, in your writing. For instance, the area of school, office and hospital, ठीक है, जो हमारा एरिया है इन तीनों का is made smaller, वो छोटा हो गया है. और you can also use shrunk. ओके, श्रंक वर्ड यूज कर सकते थे आप. श्रंक आप क्यों यूज करोगे, बिकॉज ये हमारा जो है ना पास्ट के रिलेटेड है, सो हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि पास्ट में वो हुआ था अब, लेकिन वो क्या है अब प्रेजेंट में तो वो हो ही चुका है, तो श्रंक यूज कर लोगे आप. ओके, इन दीज डेज, ओके, जो एरिया स्कूल, हॉस्पिटल एंड ऑफिस का है वो क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है, स्मॉल हो गया है इन दीज डेज एज कंपेयर टू पास्ट. बट ठीक है, पास्ट के रिलेटेड अगर कंपैरिजन करें तो ऑब्वियस है कि एरिया है उसका फ़र्क पड़ा है, राइट. बट लोकेशन आर सेम एज पास्ट, बट जो लोकेशन है दैट वाज द सेम, दैट आर द सेम एज
इट इन दी पास्ट, जैसे कि पास्ट में थी सेम एज इट प्रेजेंट में लोकेशन का फ़र्क नहीं पड़ा, बट जो एरिया है, जो साइज है, उसका फ़र्क पड़ चुका है. ओके, सो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स हियर. ओके, okay, let's move on. The when something is replaced at the same direction or a location, so please understand this map. Like school is school, there is a nothing change. Office size is same but it replaced with mall. Okay, hospital replaced with the airport. Okay, so you can also use the same other things, like you can also use replace, convert, made, way for. Okay, made way for का मतलब वो होता है कि उसने उस चीज़ के लिए रास्ता छोड़ा. ठीक है, मानो अगर हॉस्पिटल वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ओके, हॉस्पिटल अगर वहाँ से ना हटता तो एयरपोर्ट वहाँ पे कैसे आ पाता. ठीक है, तो उसने रास्ता दिया है कि एयरपोर्ट बन जाए. ठीक है, इसी वजह से मेड वे फॉर यूज़ किया जाता है. ओके, सो आई हैव ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर यू. इन द ईयर 2019 में ऑफिस एंड हॉस्पिटल वॉज रिप्लेस्ड विद मॉल एंड एयरपोर्ट. अगर आपको रिस्पेक्टिवली की फिगर आती है तो देन डेफिनेटली इट्स सो इजी फॉर यू. ओके, ऑफिस है जो हेयर इट इज, ऑफिस की जगह पे क्या बन गया हमारा, मॉल. हॉस्पिटल की जगह क्या बन गया, एयरपोर्ट. ओके, सो अगर मैंने ऑफिस पहले लिखा है, राइट, तो मुझे यहाँ पे ऑफिस की जगह पे क्या बना, मॉल. ठीक है, तो मॉल को मुझे पहले ही लिखना पड़ेगा. ओके, अगर मैं मॉल पहले नहीं लिखूंगी देन इट इज़ अ like I don't able to use the respectively figure here. Okay, ऑफिस ने रास्ता किसको दिया, मॉल को, और हॉस्पिटल की जगह क्या बन गया, एयरपोर्ट बन गया. सो इन दैट वे इफ यू यूज ऑफिस एट द फर्स्ट that time you have to use mall at the first time also. Okay, so replace हो गया. ठीक है, ऑफिस converted into mall, जो ऑफिस है वो कन्वर्ट हो गया था मॉल में, वेयर एज जबकि. ठीक है, जबकि जो हॉस्पिटल है चेंज्ड इनटू एयरपोर्ट, हॉस्पिटल की जगह पे क्या बन गया, चेंज हो गया, एयरपोर्ट बन गया. ओके, ऑफिस एज वेल एज हॉस्पिटल, जो ऑफिस एंड हॉस्पिटल हैं उन्होंने रास्ता दिया है किसको, ऑफिस ने किसको दिया है, मॉल को. फिर मैंने मॉल पहले लिख दिया. हॉस्पिटल ने किसको दिया है रास्ता, एयरपोर्ट को, तो फिर मैं एयरपोर्ट है जो वो बाद में लिखूंगी और यहाँ पे मेरे को रिस्पेक्टिवली भी यूज करना पड़ेगा. ओके, सो बी केयरफुल. ओके, रिस्पेक्टिवली इन 2019. होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड till this video and let's continue this video. Okay, for example, in case of a road, here it is a one road. Okay, first of all you know about the direction. Okay, same as it road, office, school, hospital. Okay, in the same direction. So how we can use के जो road है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, west को east direction में जा रहा है. road is run from west to east direction. Okay, अगर ये past में होता then which we have to use ran. Okay, तो हमें ran यूज़ करना पड़ता है बिकॉज इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, बट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं दिया है ईयर, तो मैं एज अ प्रेजेंट के तौर पे लेकर चल रही हूँ. रोड इज़ रन, वो दौड़ रहा है. ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आप वेस्ट पहले लिखोगे. देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ लाइक रूल एंड रेगुलेशन, बट हम पहले नॉर्थ लिखते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ अ डायरेक्शन. ओके, अगर कंपेयर करते हैं हम नॉर्थ साउथ को, नॉर्थ वेस्ट को और नॉर्थ ईस्ट को. ओके, दैट टाइम वी हैव टू यूज द नॉर्थ डायरेक्शन एट द फर्स्ट टाइम. ओके, बिकॉज ये प्रायोरिटी हम नॉर्थ को देते हैं, बट इन केस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट दैट टाइम वी यूज वेस्ट डायरेक्शन एज कंपेयर टू ईस्ट वन. ओके, अगर ऐसा नहीं भी करोगे, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लिख दोगे तो भी आपके बैंड है वो कम नहीं होंगे. ओके, बट ट्राई टू यूज द लाइक सेम थिंग, लाइक जैसे हम यूज़ करते हैं उसी प्रकार से आप यूज़ करो. अगर हम नॉर्थ तो पहले आएगा ही आएगा. ओके, अगर आपने यहाँ पे भी देखा होगा हमारी वीडियो के फर्स्ट टाइम पे,
हियर इट इज़। तो यहाँ पे भी हमें पहले नॉर्थ को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे भी इन केस ऑफ दीज काइंड ऑफ अ डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ओके, बट इन केस ऑफ दिस साउथ एंड वेस्ट वी गिव अ प्रायोरिटी टू द साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ओके। सो here we are, here it is, we are here, okay। You can also use, ठीक है, east to west or west to east, you can use any direction, okay। If you don't want to use this one, then you can also use the different other words, road leads, okay। road को हम always क्या सिंगुलर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, okay। road leads जाता है, फ्लो, ठीक है, वो चलता है रोड, रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ओके। सो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो यूज दीज 3 वर्ड्स, ओके, इन योर राइटिंग टास्क 1, ओके। सो जब फॉर्मेशन होती है रोड की, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो यूज़ करते हैं मेक रोड, बिल्ट रोड, बट डियर बिल्ट एंड मेक दैट इज़ अ नॉट suitable word for making roads, okay। so you can also use the rolled out and carpeted, okay। carpet first form है और roll out first form है, but here I use the rolled out and carpeted because I have an example related to the our past time, okay। so okay, so if you understand this map, village in 1990 there was nothing, okay, but in 2020 there was also a two road, okay, that first is also run from the west to east and another one north to south, okay। and there on the periphery of the on the side of the east there was also a plantation of the tree, okay। but let's move how we can use it। for example, road was rolled out, बन चुके हैं, ठीक है, in 2020 in 2000 में, and it ran towards the top, bottom, left and right। you can also use these 4 kind of a direction, okay। in case of if you don't use like this, you can also use these kind of a direction, okay। road was carpeted, बन चुका था 2000 में, and it was lead टू ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ये जा रहा है, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर डायरेक्शन आप मेंशन करना चाहते हो तो आप इसी तरह मेंशन कर सकते हो, ओके। सो अगर आप बात करें बाउंड्री की, लाइक बाउंड्री में क्या है, अब ट्रीज है, बाउंड्री ऑफ द ईस्ट डायरेक्शन, ओके। सो बाउंड्री के लिए आप पेरिफेरी यूज कर सकते हो, फ्रिंज यूज कर सकते हो और अलोंग विद यूज कर सकते हो, ओके। सो द ट्रीज आर प्लांटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द वेस्ट डायरेक्शन, ओके। वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, जो पेरिफेरी मीन्स साइड पे, वेस्ट डायरेक्शन में वहाँ पे क्या ट्री प्लांटेड किए गए हैं, trees are planted towards the fringe of the west direction, okay। so in that way you can also use these boundary areas, okay। so here I wanted to see you one thing that is related to desolate deserted area, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको डियर मैप में आता है कि 1990 में वहाँ पे कुछ खास नहीं है, समथिंग like different trees and only 2 and 4 person are there, लाइक जो सुनसान एरिया होता है, लिटिल बिट यहाँ पे पॉपुलेशन हो, उसको बोलते हैं डिसोलेट एंड डिजर्टेड एरिया वेयर नोबडी इज देयर, ओके। इन केस ऑफ अ बसलिंग, एवरीवन्स नो अबाउट व्हाट इज द हसल एंड बसल, सो the comparison of the hustle and bustles and the desolate, these are the opposite of each other। hustle and bustle यहाँ पे चहल पहल ज़्यादा हो, right। so bustling areas होते हैं where so many things are available, so these are related to our this thing। so hopefully this video is related to you and also helpful for you in case of your map, okay, task 1। so thanks for watching this video।